Good afternoon to one and all. Today's our discussion topic will be on with respect to UV spectroscopy. The basic objective of this today's session will be to focus on few points from your syllabus on the topic of UV spectroscopy. The topic of UV spectroscopy basically deals with, I will rather more concentrate on the word of spectroscopy, rather concentrating on UV visible part. So this today's discussion will be involving some major coverage areas. Likewise, what exactly is meant by spectroscopy? What are the basic of spectroscopy? If you understand the basic of spectroscopy, so that is applicable to all kind of spectroscopy. Either you go for UV, IR, NMR, mass, for any kind of spectroscopy you go. If your these concepts are clear, they will be quite helpful to you. Then there is a concept of electronic transitions, again a concept which is associated with spectroscopy that we will discuss. Few parts of chromophore, observochrome, and then we will move towards our UV visible spectroscopy part with respect to principle and theory. And we would like to again observe whether really this concept of UV spectroscopy is useful to us or not with respect to the application part. So these are the major coverage point for today's session. So we will start with the spectroscopy concept. So first of all, we need to understand the word spectroscopy. The word spectroscopy, what exactly it means. If you observe the word spectroscopy, literally it means interaction of EMR with matter. It goes EMR with matter. Now here the word EMR stands for electromagnetic radiations. Likewise, if a fast moving object is when it strikes a stable object, definitely some kind of interaction may occur. So same thing is observed in this case, that whatever EMRs or whatever light rays we do have, when these rays, when they travel in the space, they travel with some kind of space, with some kind of speed. And when they strike a steady object or a moving object, definitely they would create some kind of interaction. What exactly that interaction is, that will lead to our path. What exactly we will be discussing. Now, in the concept of spectroscopy, first of all, I would discuss about the what exactly the word spectroscopy. When I say that, it is all about the interaction of EMR with matter. So in this term, these two components are of playing a major role. The first component are the electromagnetic radiations, and second component is the sample to which it would be striking. Rest I will not discuss. I will right now only discuss. I'm more interested about these 2 points. The first point is the information regarding this EMR, and second is the information regarding the particle. So let's try to discuss what exactly is meant by EMR. I need to remove it up. Yeah. So we will discuss about what exactly is meant by EMR. Now EMR, if we observe, this is here I have shown a photo of a typical international airport, but we will not discuss about this airport. I will discuss about where you are sitting right now. First of all, I will give you a representation of the airport scene. Now in this airport scene, are there any kind of EMR available? Yes, the EMR are available in every now and then form. You can see the this antenna signal it is receiving signal in the form of EMR. Secondly, what is happening here? Yeah, sorry. So what exactly EMR stands for? So if you observe in your surrounding, similar appearance, you can see that you're at the presently where you are sitting, you might be having a signal receiver, likewise the Wi-Fi signal receiver. So that signal receiver over here, which depicts over here of a cable, this tabletop, that is again a receiver of electromagnetic radiations.
Similarly, the phones on which we speak, that phone also it works on the concept of movement of the radio waves. So these radio waves are again EMR. The body scanner, again, it works on the concept of EMR. So we need to understand that electromagnetic radiations are in our surrounding. They are present continuously in our surrounding in different forms. And these EMR usually have few properties. So what are those properties? Basically, EMR shows two types of properties. One is wave property, other one is particle property. Let's have a brief description about what is meant by wave property. So you might have seen that typical EMR travels in a wave pattern, something like this. So when it moves, when it propagates, if I say that sunlight is coming to Earth, so there must be some way of propagation of that sunlight. वो जिस तरह से वो सनलाइट ट्रैवल करता है सूरज से पृथ्वी तक, तो वो ट्रैवल करते समय एक कोई ना कोई पैटर्न फॉलो करता है. यूजुअली इट इज सेड दैट इट फॉलोज अ वेव पैटर्न. वो एक वेव पैटर्न फॉलो करता है और उस वेव पैटर्न में हमें देखने को मिलता है अल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ क्रिएशन. अब ये जो अल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ आपको दिख रहे हैं, ये अल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ जब ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करते समय वो विद इन देम क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. अगर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपने जो 8th या 9th स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा, तो वहां पे हमने एक प्रैक्टिकल किया था जहां पे मैग्नेटिक नीडल लिया था, उसको कॉपर वायर से हमने वाइंड किया था और बैटरी से अटैच किया था. जब आपको अगर वो प्रैक्टिकल याद आ रहा है तो आपने जब करंट फ्लो किया था कॉपर वायर से, तो मैग्नेटिक नीडल जो थी वो मूव हुई थी. वैसे तो मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन मूव होना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक नीडल अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब उस कॉपर वायर में करंट फ्लो होता है तो कॉपर वायर में इलेक्ट्रिक करंट के साथ साथ टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है, और ये टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड उस मैग्नेटिक नीडल को इन्फ्लुएंस करती है, उसको पैरेलल करने में मजबूर करती है, इसलिए वो मैग्नेटिक नीडल मूव होती है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी तब तब मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी. और यही कंसेप्ट हम यहाँ पे लाते हैं कि अगर हम कहते हैं कि जो वेव पार्टिकल्स, जो वेव या फिर जो रेज ट्रैवल कर रही है सूरज से पृथ्वी तक, तो वो ट्रैवल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव. तो जब वो वेव फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, डेफिनेटली उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होती है. अब सवाल ये उठता है, क्या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड साथ में चलते हैं? नो. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इन राइट एंगल डायरेक्शन चलते हैं. सो अगर ये रेड कलर इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का पाथ, तो ब्लू कलर इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड का पाथ. सो दीज आर ऑलवेज एट परपेंडिकुलर डायरेक्शन. Likewise, Earth, when we say that, why is that the magnetic needle की नॉर्थ ही डायरेक्शन क्यों दिखाती है? हम कहते हैं ना कि मैग्नेटिक नीडल हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन दिखाती है, लेकिन क्यों दिखाती है? द रीजन इज, अर्थ जो है वो अर्थ जब अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, तो वो रोटेशन करते समय क्या होता है, जो अगर कोई चीज रोटेट कर रही है तो वो दो एजेस पे, जो दो पोल्स है, उन पोल्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है. और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, ऑब्वियसली वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, वो इन्फ्लुएंस करती है मैग्नेटिक नीडल को. इसलिए हमारा नीडल हमेशा नॉर्थ पोल दिखाता है. सो हमें ये समझना जरूरी है कि जो रेज ट्रैवल होती है, उनमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, और वो हमेशा राइट एंगल में रहते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक. और इसी वजह से इन वेव्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. आई गेस आपको ध्यान में आ गया होगा कि ये नामकरण क्यों हुआ, उन रेज को ये नाम क्यों दिया गया, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी व्हिच दे पोजेस. सेकेंडली, इसमें और एक बात है, द वे ऑफ प्रोपोगेशन. यूजुअली वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते हैं. सो ये एक टिपिकल वेव की, टिपिकल रेज की, एक रेडिएशन की प्रॉपर्टी रहती है. उसके बाद second thing is the information regarding the what we call as some more properties of this wave.
यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है वो सामने की तरफ है। ये तीन चीजें इंटरलिंक्ड है। हम बात करेंगे अब ईएमआर की ड्यूअल प्रॉपर्टी। क्या है ईएमआर की ड्यूअल प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो दो तरह के नेचर देती है। एक जो नेचर है वो हम कहते हैं उसको वेव नेचर, मतलब एक समंदर में जो एक पानी की जो तरंग उठती है उसको हम वेव कह सकते हैं। वैसे ही दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है पार्टिकल प्रॉपर्टी। पार्टिकल मतलब आपका जो हमने एक बीकर के अंदर अगर कोई पार्टिकल रख दिया तो वो हम कहते हैं कि वो हमेशा मूव करता है, वो स्ट्राइक करता रहता है, जिसको हम ब्राउनियन मोशन से भी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो वो पार्टिकल जो है वो पार्टिकल प्रॉपर्टी जो एक्चुअली रिलेटेड है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, वो पार्टिकल प्रॉपर्टी वो भी इस ईएमआर में रहती है। और एक वेव जो प्रोपोगेशन की प्रॉपर्टी लाता है वो प्रॉपर्टीज भी इसमें अवेलेबल रहती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेव प्रॉपर्टी हम जब डिस्क्राइब करते हैं तो उसको डिस्क्राइब करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्यू टर्म्स, लाइकवाइज वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी। ये कुछ टर्म्स है जिससे हम किसी भी वेव को डिस्क्राइब करते हैं। क्योंकि जो वेव्स हमारे सराउंडिंग में है बहुत डिफरेंट टाइप्स की वेव्स अवेलेबल है, तो इन सभी वेव्स को कहीं ना कहीं हमें डिस्क्राइब करना है, किसी न किसी लैंग्वेज में डिस्क्राइब करना है, और इसलिए इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज के साथ। जैसे का एक टर्म है वेव। वेव का मतलब क्या? तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको सक्सेसिव क्रेस्ट और सक्सेसिव ट्रफ देखने को मिलेंगे। तो ये जो क्रेस्ट और ट्रफ यहाँ पे बनते हैं, इन दोनों में का एक डिस्टेंस जो कंसेक्यूटिव वेव और कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ जो बनते हैं उसको हम सिंगल वेव कहते हैं। और उन वेव में का जो डिस्टेंस है, एक सिंगल वेव का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं, जो डिस्टेंस को हम क्योंकि लेंथ से काउंट करते हैं इसलिए नाम पड़ता है उस वेव की लेंथ, दैट इज वेवलेंथ। So here you can see how what is the wavelength. So if you could observe the wavelength of any component. So if I am having a wave something like this, and if I am having a wave something like this, so ये जो दो waves है ये completely अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इनके दो, एक सिंगल वेव का जो डिस्टेंस है यहाँ, या अगर ये डिस्टेंस में इसको x करूं तो ये डिस्टेंस इससे मैच होगा क्या? इस तरह से हर वेव का जो क्या कहते हैं जो डिस्क्रिप्शन रहता है वो अलग अलग होता है। हम उसको इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं वेवलेंथ के द्वारा। सो वेव्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अब बारी आती है एक और टर्म की जिससे हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, वो है फ्रीक्वेंसी। क्या होती है फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड। एक सेकेंड में एक जगह से कितनी वेव्स पास हो रही है, क्या आप देख सकते हो यहाँ पे? अगर ये रेड वेव आप देखो तो ये इट इज अ लॉन्ग वेव, वही अगर ये ब्लू वेव देखो तो इट इज शॉर्ट वेव। तो अगर मैं इनको कैलकुलेट करूं कि इस पॉइंट में से, यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट ड्रॉ कर दूं समथिंग लाइक दिस, सो दिस इज माय पॉइंट, इस होल में से मुझे इनको पास करना है। तो अगर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ताकि ये दिखे, ठीक है। तो अगर ये रेज इस होल में से पास हो रही है और ये रे इस होल में से पास हो रही है, अब क्योंकि रेड वाली रे बड़ी है तो एक सेकेंड में कौन सी रे सबसे ज्यादा पास होगी? एनीबॉडी? किस रे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी या किस रे की फ्रीक्वेंसी कम होगी? जैसे हमने डिस्क्राइब किया, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी वेव्स पास हुई एक पॉइंट में से पर सेकेंड। सो कोई मुझे बता पाएगा कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी और किसकी कम रहेगी? एनीबॉडी? ब्लू रे। ब्लू रे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी। वेरी गुड। व्हाई इज इट सो? बिकॉज उसका वेवलेंथ कम। इसका मतलब है कि वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी में कहीं ना कहीं हमें एक रिलेशन देखने को मिलता है कि अगर जैसे आपने कहा कि वेवलेंथ जो है वो छोटी है तो फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी? ज्यादा रहेगी। वेवलेंथ अगर बड़ी है तो फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी? कम रहेगी। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन बिटवीन दीज टू टर्म्स, wavelength and frequency. So what we can conclude, whether it is a direct relation or indirect relation,
Yes, students? Indirect relation. Very good. Indirect It is a indirect relation. So we do have a relation between wavelength and frequency. इसमें और एक एस्पेक्ट जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है वो एस्पेक्ट है एनर्जी। अब अगर मैं एनर्जी को देखूं तो एनर्जी भी एक वो कंसिडरेबल थिंग है, जो एक कंसिडरेबल फैक्टर है जो वेवलेंथ के हिसाब से चेंज होता है। अगर जितनी वेवलेंथ बड़ी रहेगी उतनी जो एनर्जी है वो कम रहेगी, जितनी वेवलेंथ छोटी रहेगी उतनी एनर्जी ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पे जो इनवर्स रिलेशन आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में दिखा, वैसा ही इनवर्स रिलेशन वेवलेंथ और एनर्जी में भी रहता है। ये रिलेशन हम आगे और जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू करेंगे तब हम उसको और सही ढंग से पढ़ेंगे। अब ये जो हमने डिस्कस किया ये था द वेव प्रॉपर्टी ऑफ द ईएमआर। अभी हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ईएमआर। क्या होता है पार्टिकल प्रॉपर्टी? पार्टिकल प्रॉपर्टी का मतलब, अगर मैं कोई भी एक रैंडमली पार्टिकल कंसीडर करूं जो एग्जिस्ट करता है स्पेस में, तो उस पार्टिकल में अगर कोई प्रॉपर्टी रहती है तो वो रहती है विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी पजेस्ड बाय इट, जो उसमें एनर्जी रहती है। ये एनर्जी रेडिएशंस में रहती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, जो हम नाम उन पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं फोटॉन पार्टिकल्स, जो एनर्जी के साथ मूव करते हैं, जो एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उस ईएमआर में जो भी एनर्जी फैक्टर है वो एनर्जी फैक्टर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं विद अ टर्म व्हाट वी कॉल्ड एज फोटॉन्स। फोटॉन्स ये ऐसे पार्टिकल्स रहते हैं जिनको मास तो नहीं रहता, जिनमें चार्ज भी नहीं रहता, लेकिन वो एनर्जी पजेस करते हैं। सो हियर वी कंक्लूड टू इंपॉर्टेंट थिंग्स कि ईएमआर, क्योंकि ईएमआर देखो, ईएमआर अगर जो सूरज से आने वाली किरणें वो सूरज से अगर जमीन तक आ रही है तो विदाउट एनर्जी वो प्रोपोगेट तो नहीं होगी, ऑब्वियसली एनर्जी के साथ ही प्रोपोगेट होगी। मतलब उस रे में, उस रेडिएशन में ये दोनों चीजें अवेलेबल है। बात करते हैं जो हमारे सराउंडिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज अवेलेबल है उनके बारे में। जैसे मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज पृथ्वी तक आती है वो शायद बड़ी वाली रेज होगी या शायद छोटी वाली रेज होगी। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझना है कि हम कोई भी चीज क्यों देख पाते हैं। आप अगर कोई आपके सामने अगर मोबाइल देख पा रहे हो, या फिर आपके नजदीक में कोई और चीज माउस होगा या पेन होगा, ये चीजें आप क्यों देख पाते हो? ये चीजें अगर आप रात के अंधेरे में इन चीजों को नहीं देख पाते, लेकिन दिन के उजाले में इन चीजों को देख पाते हो। Why is it so? The answer is very simple, क्योंकि लाइट रेज जब इनसे टकराती है, रिफ्लेक्ट होके आपके आईज में वो एक इमेज क्रिएट करती है। यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्शन ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या अंधेरे में हमारे आंखें खुली नहीं रहती है, लेकिन स्टिल हमें इमेजेस नहीं दिखती, बिकॉज लाइट इज मिसिंग, द लाइट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस। और यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है कि लाइट कब रिफ्लेक्ट ऑफ होगी? जब लाइट उस चीज से टकराएगी। अगर लाइट टकराएगी नहीं तो आपको वो दिख नहीं पाएगा। आपके सराउंडिंग में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारे वायरसेस हैं, हम उसे क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि लाइट उससे टकरा के हमारे आंखों में इमेज नहीं क्रिएट कर सकती। इसलिए अगर ऐसा कोई वही बैक्टीरिया या वायरसेस हम माइक्रोस्कोप में क्यों देख पाते हैं? क्योंकि आप लाइट को मॉड्यूलेट करते हो लेंसेज के द्वारा, और फिर ये लाइट आपके आंखों तक इमेज क्रिएट कर पाती है। मतलब यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि चीजें तभी दिखती है जब लाइट रेज उनसे टकराती है। सो अगर मैं कहता हूँ कि ये लाइट रेज अगर बहुत बड़ी है और बहुत छोटी है, तो ऑब्वियसली इनकी टकराने की जो फ्रीक्वेंसी है वो फॉर अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स है शायद अलग रहेगी। जो बड़े वाली रेज है वो छोटे वाले न्यूक्लियाई या एटम से नहीं टकरा पाएगी। आ रहा है ध्यान में? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आप किस रेज के साथ खेल रहे हो, किस पैटर्न के साथ खेल रहे हो। अगर जैसे मैंने कहा कि जो रेज पृथ्वी तक आती है वो बहुत ही वाइड रेंज में रहती है। ऐसा कहा जाता है कि एक दो माउंटेन्स के बीच में का जो डिस्टेंस है, इतनी बड़ी भी एक वेव रह सकती है, और छोटे से छोटे एटम को स्ट्राइक करने वाली वेव भी शायद रह सकती है।
तो दीज आर द डिफरेंट वेव्स विच आर अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट, और उनको अगर हम पढ़ना चाहे तो हम उसको क्लासिफाई करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू नेमिंग पैटर्न, जिनको हम लेते हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, visible waves, ultraviolet waves, X-rays, and gamma rays. So these are the different what we called as wave which we have named them. अब सवाल ये उठता है, नेमिंग हमने किस बेस पे किया? नेमिंग हमने किया बेस अपॉन वो प्रॉपर्टी जो वो शो करते हैं, प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी। आप अगर एनर्जी देखो तो एनर्जी है, जैसे मैंने तभी बताया था, एनर्जी और वेवलेंथ में हमेशा इनवर्स रिलेशन रहता है। तो जितनी बड़ी वेवलेंथ रहेगी उतनी एनर्जी बहुत कम रहेगी, जितनी छोटी एनर्जी वेवलेंथ रहेगी उतनी एनर्जी ज्यादा रहेगी। इसलिए आप देख पाते हो कि देखो विजिबल रेज जो है वो सिर्फ आपको चीजें दिखाती है, अल्ट्रावायलेट रेज में वेव की लेंथ छोटी हो जाती है, तो अल्ट्रावायलेट रेज में इतनी पावर है कि वो आपकी स्किन को कोरोड कर सकती है, वहां पे कैंसरस सेल्स ग्रो कर सकती है। वही अगर आप और छोटी वेवलेंथ देखो, एक्सरेज देखो, तो ये एक्सरेज आपके स्किन से नहीं टकराती, बल्कि स्किन से होते हुए, बॉडी मसल से होते हुए हड्डियों तक जाके वो वापस आती है। दैट इज द पेनिट्रेशन पावर। इनकी क्यों बढ़ी? बिकॉज वेवलेंथ डिक्रीज हुई, मतलब एनर्जी इंक्रीज हुई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ एंड एनर्जी। नाउ सम अब यहाँ पे हमारा डिस्कशन जो हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ शुरू किया था, वो यहाँ पे उसका एक पार्ट खत्म होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने कहा था स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑल अबाउट इंटरेक्शन ऑफ ईएमआर विद मैटर। सो अभी तक हमने जो डिस्कशन देखा उस डेफिनेशन में के जो दो पॉइंट थे, एक था ईएमआर और मैटर, तो अभी तक हमने जो डिस्क्राइब किया वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। अब मैं बात करूंगा रिगार्डिंग द पार्टिकल, वो जिससे टकराएगी उस पार्टिकल में क्या कोई प्रॉपर्टीज रहती है? आंसर इज यस, उस पार्टिकल में भी कुछ प्रॉपर्टीज रहते हैं। यहाँ पे हम उनको डिस्क्राइब करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सम काइंड ऑफ एनर्जी पार्टिकल्स। एक केमिकल स्ट्रक्चर है, कोई भी अगर आपके पास सराउंडिंग जो भी स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स है, उन सभी कंपोनेंट्स केमिकल कंपाउंड से बने हुए रहते हैं, और केमिकल कंपाउंड का अपना एक अलग स्ट्रक्चर रहता है। ये केमिकल कंपाउंड जब फ्री फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं, लाइकवाइज इन लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। जैसे वो मॉलिक्यूल, क्योंकि अगर मैं कहता हूँ दिस इज अ HCl मॉलिक्यूल, दिस व्हाइट इंडिकेट्स हाइड्रोजन एंड रेड इंडिकेट क्लोरीन, सो ये जो HCl मॉलिक्यूल है, ये HCl मॉलिक्यूल बेसिकली अगर स्पेस में अगर या लिक्विड स्टेट में अगर अवेलेबल है या गैसियस स्टेट में अवेलेबल है, तो वो हमेशा रोटेट करते हुए रहेगा। ये मॉलिक्यूल स्पेस में स्टेबल, तो स्टेडी स्टेट में नहीं रहेगा ये, इसको कोई भी एनर्जी स्ट्राइक करते तो ये इजीली रोटेट करता है। तो ये जो एनर्जी इसमें है जो इसको रोटेशन के लिए हेल्प करती है, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं रोटेशनल एनर्जी। यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल है जो आप यहाँ देख पा रहे हो, फॉर सम रीजंस एनिमेशन वर्कआउट नहीं कर रहा, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे बेसिकली ये वाइब्रेट होता है, मतलब ये दो एटम्स नजदीक आते हैं, ये दो एटम नजदीक आते हैं, ये दो एटम नजदीक आते हैं, या फिर ये दोनों अपने एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो अगर वो एक पॉलीमेरिक कंपाउंड है तो ऑब्वियसली उसमें जो एटम्स है वो या तो जो इंडिविजुअल एटम्स है वो या तो स्टेबल रहेंगे या तो अनस्टेबल रहेंगे। अगर वो अनस्टेबल रहेंगे तो वो हमेशा वो हिलते रहेंगे, एंड दैट वुड क्रिएट सम काइंड ऑफ वाइब्रेशंस विद इन द बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स, बिटवीन द वेरियस एटम्स। सो वो जो वाइब्रेशंस उसमें हमेशा होते रहते हैं, उन वाइब्रेशंस को हम नाम देते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। और उसी तरह से एक एनर्जी रहती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की हम जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है इलेक्ट्रॉन्स। हमें मालूम है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उस एटम में प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन्स हर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं या रोटेट करते रहते हैं। आई विल यूज द वर्ड रिवॉल्व करते रहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है और उनके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स अवेलेबल है, तो एक हमेशा उनमें अट्रैक्शन और रिपल्शन प्रोसेस क्रिएट होते रहती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर सपोज्ड टू बी कंटिन्यूअसली मूविंग, बट दे मूव विद इन देयर ऑर्बिट।
or thus they do possess a energy to what we call as electronic energy. So likewise we can say, now apart from that, there are, apart from these three, there are other states of the energy for the molecule, but because हमारे काम के लिए ये तीन एनर्जी है, तो हमने ये तीन ही एनर्जी डिस्कस की है। जो मॉलिक्यूल की हम बात, मैं फिर से बोल दूंगा, हमने स्टार्ट किया था डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहां पे हमने कहा था स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑल अबाउट इंटरेक्शन ऑफ ईएमआर विद मैटर। हमने पहले ईएमआर को डिस्कस कर दिया है, अब हम बात कर रहे हैं मैटर की। कोई भी मैटर जो रहता है वो अलग अलग एनर्जी स्टेट्स में प्रेजेंट रह सकता है। उसमें से हम कह सकते हैं कि अगर मैटर लिक्विड स्टेट में या गैसियस स्टेट में है, तो यूजुअली उसमें रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एनर्जी प्रेजेंट रहती है। सो यहाँ तक शायद मैंने आपको क्लियर कर दिया है वो दो एस्पेक्ट्स। अब आती है बारी इंटरेक्शन की। जैसे मैंने बताया था आपको कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑल अबाउट इंटरेक्शन ऑफ ईएमआर विद मैटर। मतलब जब ये ईएमआर उस मैटर से टकराएंगे, क्योंकि ईएमआर एक फास्ट, उस ईएमआर के पास एनर्जी वो ट्रैवल कर रहा है, तो वो जब मैटर से टकराएगा तो उन दोनों के बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा। क्या होगा इंटरेक्शन, उसको हम ऑब्जर्व करते विद रिस्पेक्ट टू दिस एनिमेशन। सो अगर ये एक फास्ट मूविंग गाड़ी एक स्टेडी गाड़ी से टकरा रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई बोल पाएगा मुझे, कोई बता पाएगा? What do you conclude from this slide? If anybody, please. Because the truck is in momentum, it is having some kind of energy, traveling with some kind of energy, and the car itself was having, it was steady in nature. So what kind of conclusion you can withdraw from this slide? Yes, students? क्या आपको लगता है कि ये जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, ये अपनी एनर्जी चॉइस स्टेडी ऑब्जेक्ट को दे रहा है? Yes, it's apply the more force than the. So what exactly is happening is that this fast moving object when strikes a steady object, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं रहता तो ये फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट शायद निकल जाता, वो अपनी स्पीड मेंटेन करता, लेकिन क्योंकि वो स्ट्राइक हुआ विथ अ स्टेडी ऑब्जेक्ट, so there would have been some kind of interaction of energy. Same thing occurs with respect to EMR also. When we say that a fast moving EMR strikes a matter, definitely the energy will be transferred from the EMR to the matter. So here we can say that the matter which is in steady state, it would be having some kind of kinetic energy and some kind of potential energy. The kinetic energy of the molecule, of the object, it can be of three types: translational motion, rotational motion, and vibrational motion. What is mean of translational motion? The motion which is required for moving the object from one place to another. That is what we call as translational motion. What is rotational motion? The energy required to rotate the molecule, what we call as rotational motion. And finally, the vibrational motion, that is the energy which is required to bring about vibrations within the atoms, within bonds between the two atoms. So these kind of energy states, which are the kinetic energy states of a steady molecule, we can observe. जैसे यहाँ पे आपने देखा था, इस कार में अपने पास उसकी खुद की एक स्टेडी स्टेट जब भी होगा, लेकिन उसके बाद अपने एक पोटेंशियल एनर्जी पक्का होगी। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और एक काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ। सो मॉलिक्यूल में ये तीन तरह की काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलती है। ट्रांसलेशनल, मतलब आप जब वो मॉलिक्यूल एक जगह से सेकंड जगह मूव करेगा, उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम ये मोशन कंसीडर नहीं करते हमारे स्टडी के लिए। वी आर मोर कंसर्न अबाउट रोटेशनल, वाइब्रेशनल, एंड द थर्ड वन, दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। So this is a brief discussion about how it exactly happens step by step. This is the first step when you can see this yellow ray indicates the movement of the electromagnetic radiations. Now this would be start, जब मैं कह रहा था अभी तक आपसे कि वो पार्टिकल से टकरा रहा है वो लाइट रे, तो अब क्या आपको लगता है वो पार्टिकल में किसे टकरा रहा होगा? पार्टिकल में जैसे वो कार, क्या पूरे कार को टकराया क्या वो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट? यहाँ पे जो आपने देखा, ये जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, क्या पूरे कार से टकराया क्या? नहीं, कार के पिछले हिस्से से टकराया। वैसे ही जब कोई ईएमआर किसी मॉलिक्यूल से टकराती है, तो
ऑब्वियसली वो मॉलिक्यूल के किसी हिस्से से टकराती होगी। ऑब्वियसली उस हिस्से में वो एक केमिकल एटम होगा, एक एलिमेंट होगा या एटम होगा। अगर एटम होगा तो उस एटम के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब ये ईएमआर शायद उस एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराया होगा, तो उसने अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दी होगी। ये इलेक्ट्रॉन इस ब्लू ऑर्बिट में पहले रोटेट कर रहा था, सॉरी रिवॉल्व कर रहा था, लेकिन जैसे ही इसको इस ईएमआर ने अपनी एनर्जी दी, तो अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है दैट इज वेरी स्पेसिफिक फॉर द एनर्जी व्हाट इट पजेस। जो ऊपर का ऑर्बिट है, उस ऊपर के ऑर्बिट में एनर्जी थोड़ी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू द इनर ऑर्बिट। सो ऑब्वियसली जब ये ईएमआर इस पार्टिकल से टकराएगा तो ये एनर्जी एब्सॉर्ब करके इसको एक्साइट कर देगा। जब अगर ये एक्साइट होगा तो क्या ये इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर पाएगा? No. ये रिवॉल्व करते 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 सेकंड रास्ता भूल जाएगा और ऊपर वाले ऑर्बिट में घुस जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ शुरू होती है, क्योंकि ये एनर्जी उसकी इंट्रिंसिक एनर्जी नहीं थी, ये एनर्जी उसने एब्सॉर्ब की थी। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी थोड़ी देर बाद वो रिलीज भी हो जाएगी। और इसी तरह से ये एनर्जी आप यहाँ देखते हो थर्ड स्टेप में एनर्जी रिलीज हो जाती है फोटोन फॉर्म में। और क्योंकि वो अब एनर्जी कम हो गई है तो शायद ये इस ऑर्बिट में रिवॉल्व ना कर पाए, क्योंकि ये हाई एनर्जी ऑर्बिट है। तो वो फिर से अपने घर पे वापस हो जाता है जहां पे वो शांति से रिवॉल्व कर सकता है। सो ये चीज होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वेयर पार्टिकल गेट जंप फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट बाय द कोलिजन ऑफ द मूविंग पार्टिकल। आई गेस आपके ध्यान में आया होगा कि क्या होता होगा जब ईएमआर एक मॉलिक्यूल से टकराता होगा। यहाँ पे इस चीज को बहुत ही इजीली डिस्क्राइब किया है कि अगर आप देखो तो ये जो ब्लू बॉल दिख रहा है इनर ऑर्बिट में, ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है। अब वो ईएमआर जब से टकराएगा तो वो उसको लेके जाएगा हायर ऑर्बिट में, लेकिन वहां पे वो ज्यादा देर रुक नहीं पाएगा, वो एनर्जी रिलीज कर देगा। एनर्जी रिलीज करने के बाद वो फिर से अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में रिगेन हो जाता है। सो ये एब्जॉर्प्शन और इमिशन प्रोसेस साइमल्टेनियस होती है। आपको ये बात बहुत समझना जरूरी है कि जब प्रोसेस एब्जॉर्प्शन की होती है तो इमिशन प्रोसेस भी होती है, और दोनों प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी साइमल्टेनियसली। बराबर है? ये क्यों होता है? क्योंकि जो ऑर्बिट में वो घूम रहा था वो उसकी इंट्रिंसिक एनर्जी, लेकिन ईएमआर ने अपनी एनर्जी उसको देने की वजह से उसकी एनर्जी स्लाइटली बढ़ गई। अब ये बढ़ी हुई एनर्जी के साथ वो उस ऑर्बिट में नहीं घूम सकता, इसलिए उसको हायर ऑर्बिट में जाना पड़ता है घूमने के लिए। So this is what we called as electronic transition. So when we say that this is my EMR which is striking a steady molecule, so obviously अगर ये इसकी जो वेवलेंथ है वो अगर, जैसे मैं बताया था आपको कि आपको इमेज कब दिखेगी, जब वो वेव उससे टकराएगी तो ही आपको इमेज दिखेगी। अगर वेव टकराएगी नहीं तो वेव शायद निकल जाएगी। वैसा ही मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ये मेरा मॉलिक्यूल है, इससे अगर ये वेव टकराती नहीं है तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल रहेगा, मॉलिक्यूल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे और वो ईएमआर भी निकल जाएगी। लेकिन अगर वो टकराते हैं इन दैट केस इट विल ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द motion of the molecule. So the first image represents there is no interaction. Why there is no interaction? Because the wavelength is of not that capacity. इसलिए हम कहते हैं कि जो इफेक्ट हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में मिलता है वो हमें आईआर में नहीं मिलेगा, वो हमें विजिबल में नहीं मिलेगा। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस, उनका इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है, और इंटरेक्शन होने के बाद वो कौन से लेवल का चेंज उसमें लाते हैं वो भी सोचना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं हमारे ईएमआर की जो हम यूज करने वाले हैं, दैट इज द अल्ट्रावायलेट ईएमआर। ये अल्ट्रावायलेट ईएमआर जो रहते हैं वो बेसिकली अगर मैं ईएमआर क्लासिफिकेशन देखूं तो वो लाई करते हैं विजिबल रीजन के, okay, to the left side of the visible region, that is what we call it as ultraviolet region. Usually the range of visible region is 800 to 400 nanometer, whereas the range of ultraviolet starts from
400 to 200 नैनोमीटर, मतलब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो नीचे की तरफ आप जाओगे तो ऑब्वियसली एनर्जी बढ़ती जाएगी, ऊपर की तरफ जाओगे तो आपकी एनर्जी बढ़ते हुए दिखेगी, सॉरी कम होते हुए दिखेगी। So these are referred as this side of waves are referred as the long waves, and this side of rays are referred as the short wave. So अब थोड़ा मुद्दे की बात करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो रहती है वो जब अब हमने डिफाइन कर दिया कि अभी तक हम बहुत ही ब्रॉडली कह रहे थे कि कोई भी EMR जब पार्टिकल्स टकराएगी, तो यहाँ पे अब हम वेरी स्पेसिफिक बात करेंगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब पार्टिकल्स टकराएंगी तो क्या। जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पार्टिकल्स टकराती है तो तीनों तरह के चेंजेस वो मॉलिक्यूल में लाती है। दैट इज वो मॉलिक्यूल को रोटेट करने में भी हेल्प करती है, थोड़ी एनर्जी जो रोटेट करने के बाद, अब देखो इमेजिन करो कि ये अगर इस यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ थोड़ा सा। अगर मैं कहता हूँ कि ये रेज अगर इस एटम से टकराई, तो टकराने के बाद ऑब्वियसली ये मॉलिक्यूल को एनर्जी प्रोवाइड करेगी, इससे वो रोटेट करेगा। साथ ही साथ वो एटम, ये जो एटम है इसको अपनी एनर्जी देगी। जब ये एनर्जी ये एटम एब्सॉर्ब करता है तो क्या ये एटम एनर्जी अपने साथ रहेगा? नहीं। यूजुअली ये एटम एनर्जी ट्रांसफर करता है दूसरे एटम को बाय द बॉन्ड। ओके, जब ये एनर्जी ट्रांसफर होती है बाय द बॉन्ड, ऑब्वियसली दिस बॉन्ड गेट वाइब्रेटेड। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज वाइब्रेशनल मोशन, बराबर है। और उसके बाद क्या ये बॉन्ड जो है ये सिर्फ एक बॉन्ड है? नो, ये बॉन्ड बना कैसे है? ये बॉन्ड बना है बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। एक एटम ने अपने ऑर्बिटल के साथ दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए एक दूसरे के साथ। यहाँ पे इन्होंने एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर किए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे शेयर हुआ है। मतलब ये जो एनर्जी हमने इस एटम से शुरू की थी वो बॉन्ड तक पहुंची। अब बॉन्ड में कौन है? बॉन्ड में है इलेक्ट्रॉन्स। हम इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जब ये एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, क्या वो वहीं पे रहेगा? नहीं, वो एनर्जी एब्सॉर्ब करके एक्साइट हो जाएगा और अपर ऑर्बिट पे चला जाएगा। फिर वो प्रोसेस शुरू होगी जहाँ पे वो एनर्जी हैंडल नहीं कर पाएगा, एनर्जी ड्रॉप आउट कर देगा और फिर से अपने लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा। This is what we called as electronic transition. So you need to understand that whenever an EMR like UV radiation strikes a matter, any steady matter, it will bring about all the possible kind of changes. That is rotational motion, vibrational motion, and electronic transition. So यहाँ तक किसी कुछ पूछना है regarding spectroscopy? I am open for discussion. Students, if you have any curiosity to understand any concept regarding spectroscopy, I would be happy to answer it. हेलो सर। यस बेटा। सर आपने कहा कि यूवी रेडिएशन जब मॉलिक्यूल पे स्ट्राइक करता है फिर वो रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करता है। यस। तो उससे पहले मतलब अगर यूवी रेडिएशन उस पे स्ट्राइक होने के पहले मॉलिक्यूल खुद की कोई मूवमेंट नहीं शो करता है कि वो एज इट इज रहता है, उसमें कोई वाइब्रेशन वगैरह नहीं रहता है? हो सकते हैं, अगर वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल है तो उस हर एक स्टेडी मॉलिक्यूल के अपनी लेवल रहती है एनर्जी की। अगर आप एक HCl का मॉलिक्यूल लो और अगर आप बेंजीन का मॉलिक्यूल, तो बेंजीन की मॉलिक्यूल की एनर्जी लेवल अलग रहेगी और HCl की अलग रहेगी। वही अगर आप वहां पे सिस पोजीशन पे दो क्लोज, जैसे आप यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर निकालते हो, अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से सी डबल बॉन्ड ऊपर, यहाँ पे अगर आप Br दो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रख देते हो, तो क्या ये उस मॉलिक्यूल को अनस्टेबल नहीं करेगी? क्या इस मॉलिक्यूल की एनर्जी लेवल नहीं रहेगी? डेफिनेटली रहेगी। ये भी मॉलिक्यूल अनस्टेबल रहेगा, बराबर है। हमने काफी बार देखा है सिस एंड ट्रांस आर मोर स्टेबल देन सिस। मतलब क्यों ऐसा कहते हैं हम? क्योंकि उस मॉलिक्यूल की अपनी खुद की एनर्जी लेवल रहती है। सवाल ये उठता है कि क्या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इसीलिए तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझा है, इसीलिए आप बता सकते हो कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स छोटे एनर्जी पे एब्सॉर्ब होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल बड़े एनर्जी पे एब्सॉर्ब होते
आप अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का अगर स्पेक्ट्रा देखो तो आपको लैम्बडा मैक्स कुछ ड्रग के केस में 220 पे मिलेगा और कुछ केस में 270 पे मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ? 220 और 270 पे क्यों हो रहा है? बिकॉज ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनको एक्साइट करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगती है, दे विल गेट एक्साइटेड एट लोअर वैल्यू। जिनको एक्साइट करने की एनर्जी कम लगती है, दे विल अकर एट हायर वैल्यू। So this is the answer that so this is the answer that you can understand that कि जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है उसकी अपनी अलग एनर्जी लेवल रहती है, और एक्साइटेशन तभी होगा जब आने वाली रेस की एनर्जी लेवल और मॉलिक्यूल के रोटेशन के लिए या वाइब्रेशन के लिए या इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन की एनर्जी जब मैच होगी, तभी ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देके आपको एक्साइटेशन देखने को मिलेगा। अगर वो मैच होती नहीं है तो देयर विल बी नो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई वी आर हैविंग स्पेसिफिक वेवलेंथ फॉर स्पेसिफिक ड्रग। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है ना कि किसी वाटर का बॉइलिंग पर 100 ही रहेगा, इट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी। कुछ वैसे ही प्रॉपर्टीज यहाँ पे ड्रग की दिखाई जाती है। दैट इज द यूनिक वैल्यू फॉर पैरासिटामोल का लैम्बडा मैक्स 275 पे ही मिलेगा। क्यों मिलता है? बिकॉज वो मॉलिक्यूल का एक्साइटेशन 275 पे ही होगा, 220 पे नहीं होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी लेवल उस EMR से मैच करती है 275 से। सर मतलब मॉलिक्यूल पर से अपन डिसाइड करेंगे कि कौन सा रेडिएशन इंट्रोड्यूस करना है? यस, मॉलिक्यूल डिसाइड करेगा कि वो कहाँ एक्साइट होगा। वो वेवलेंथ छोटी वाली वेवलेंथ पे एक्चुअली मॉलिक्यूल की एनर्जी डिसाइड करती है। अगर वो मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत ज्यादा है तो उसको एक्साइट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब आपको लोअर वेवलेंथ पे जाना है। अगर मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है तो आपको उसको एक्साइट करने के लिए कम एनर्जी लगेगी, मतलब हायर वेवलेंथ पे जाना है, लॉन्गर वेवलेंथ। से 400 से 300 नैनोमीटर जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ है, वहां पे एक्साइट। ओके सर। सो अगर आप चाहते हो तो वी कैन कंटिन्यू, और एल्स बिकॉज 1 घंटा हो गया है, बहुत कुछ बचा हुआ है एक्चुअली। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का कंसेप्ट बचा हुआ है, फिर यूवी बचा हुआ है। सो व्हाट द ऑर्गेनाइजर फील्स, स्टूडेंट फील्स, लेट मी नो। No, sir, it is going on well. You can continue it if it is possible for you. Definitely. So you don't have any more schedule? Your own schedules? No, sir. You can have it. Okay. So we will be discussing now about the something regarding the transitions. ये ट्रांजिशन का कंसेप्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ट्रांजिशन का कंसेप्ट समझने के लिए हमें कुछ चीजें समझनी है, वो है जिसे हम कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। देखो मैं क्यों बता रहा हूँ इस चीज को, क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा इसके बारे में समझाता हूँ। मैंने आपको कहा था कि अर्लियर सॉरी मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे अगर ये EMR इस पार्टिकल से टकराती है, तो टकराने के बाद वो ऑब्वियसली इस मॉलिक्यूल की एनर्जी देगी, ये एनर्जी इस बॉन्ड में जाएगी, बॉन्ड से एनर्जी जाएगी उस बॉन्ड में इन्वॉल्व ऑर्बिटल्स में, मतलब इस इलेक्ट्रॉन्स में। अब हमें बात करनी है इन ऑर्बिटल्स की, यहाँ पे क्या होता होगा ये हमें डिस्कस करना है। ये डिस्कस करने के लिए हमें समझना जरूरी है कुछ बेसिक कंसेप्ट कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होते हैं और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। बात करते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की। प्रोसेस ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल बनता कैसे है, और वी ऑल नो दैट कि अगर ये दिस इज अ Cl2 मॉलिक्यूल, अगर ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है तो क्लोरीन का एक रेडिकल और सेकंड क्लोरीन का रेडिकल, इसमें जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं ये दोनों ओवरलैप होंगे, तभी ये मॉलिक्यूल बनेगा। जब ये मॉलिक्यूल बनता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक ऑरा क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे डार्क फेस। ये जो डार्क फेस क्रिएट हो रहा है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है। Now these molecules are formed by combination of two atoms, where two atomic orbitals combine to form the
न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिंस द न्यू ऑर्बिटल इज फॉर्म, अब यहाँ पे आप देखो कि पहले इस एटम का एक सिंगल ऑर्बिटल था, अब क्योंकि ये मॉलिक्यूल बन चुका है तो दोनों के ऑर्बिटल मर्ज होने के बाद ये पूरा जो ऑरा दिख रहा है ब्लू आपको, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहले इस इलेक्ट्रॉन का लोकेशन इस कहीं पे भी कहीं पे भी था, लेकिन विद इन द ऑर्बिट था। वहीं अब जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन में आया है तो वेयर वुड बी द लोकेशन, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे शेयरिंग में आया है वो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कहीं पे भी रह सकता है। वो या तो इसका जो लोकेशन है वो या तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में रहेगा, यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है ये या तो इन दोनों के बीच में रहेंगे, या शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। मतलब जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर आपको लोकेट करना इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अलग अलग जगह पे रह सकती है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या कहते हैं इसे हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। So since the new orbital is formed by the end-to-end overlapping, we refer it as sigma bond. Here, the possibility of occurrence of electrons will be anywhere between the nucleus. Because of this, the positive repulsive forces gets screened and stability is facilitated. Such orbital are called as bonding molecular orbital. So होता क्या है? होता ऐसा है कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अगर इनका पोजीशन यहाँ पे है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। जब निगेटिव ऑर्बिटल्स यहाँ पे, जब निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पे एक तरह का स्टेबिलिटी क्रिएट होती है। क्यों होती है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव को संभाल लेते हैं, वो उसको एक क्या कहते हैं, उसका फोर्स नलीफाई कर देते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये इलेक्ट्रॉन की पोजिशन यहाँ पे है और यहाँ पे है, ऐसे केस में ये जो प्रोटॉन है ये अनस्टेबल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि लाइट फोर्सेस जो है वो नजदीक आते हैं। अगर ये लाइट फोर्सेस नजदीक है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ऑब्वियसली रिपल्शन होना स्वाभाविक है। सो लाइकवाइज ये रिपल्शन भी होता है, या फिर मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लोकेटेड रहेंगे तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, अगर दोनों के बीच में रहेंगे तो रिपल्शन नहीं होगा, अट्रैक्शन होगा। ओके, मतलब this position will be referred as the most stable position. This is the maximum probability where the electron may lie. This is the minimum probability where the electron may lie. The maximum probability where the electron may are lying, this is called as bonding orbital. क्या कहते हैं इसको हम? Bonding orbitals. Okay, कुछ ऐसे ही रहते हैं जो अपोजिट पोजीशन की हमने बात की थी। Yeah. So thus for the current system we must have one more molecular orbital. तो ये एक रूल है, उस रूल के हिसाब से वो रूल कहता है कि अगर जितने ऑर्बिटल जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व करके आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है उतने उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहते हैं। सो अगर इसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो ऑब्वियसली इसमें एक और ऑर्बिटल होना चाहिए और उसी को हम नाम देते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहाँ पे रहता है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आप यहाँ पे देख पाते हो, ये वो ऑर्बिटल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम्स के बीच में नहीं है, दोनों के दो सिरों पे। ऐसे केस में क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पहले कंप्लीट ऑरा था अब वो कहीं ना कहीं डिमिनिश हो गया, गायब हो गया, और यहाँ पे आपको एक वैकेंट स्पेस क्रिएट हुई दिखती है। ये जो रहती है ये इसे हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। दिस इज द मिनिमम प्रोबेबिलिटी वेयर द इलेक्ट्रॉन मे लाई। आया ध्यान में? सो दीज वर अर्लियर जो हमने कहा कि द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वेयर द इलेक्ट्रॉन मे लाई, दैट इज इन बिटवीन द टू एटम्स, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज बॉन्डिंग ऑर्बिटल, and the minimum probability where the electrons may lie, that is apart from the two atoms, apart from each other, it is called as antibonding orbitals. The energy of antibonding orbital is more than the energy of bonding orbital. Can you tell me why? Why the energy of antibonding orbital is more than that of bonding orbitals? Anybody? Why the energy of bonding orbitals
is less than the anti-bonding? Anybody? अगर आपको ये आंसर आ गया तो आपके आगे के सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. Anybody would like to answer? Think about it. The answer may be wrong, no issues. But you must have that curiosity. ऐसा क्यों होता होगा? एक बार फिर से बताता हूं मैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या. बॉन्डिंग ऑर्बिटल का मतलब होता है, क्योंकि ये ऑर्बिटल जो ये जो बॉन्ड बना है, ये मॉलिक्यूल बन गया. पहले ये इंडिविजुअल एटम्स थे, अब ये कंबाइन करके मॉलिक्यूल बने. जब ये कंबाइन करके मॉलिक्यूल बने तो इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने शेयर किए. इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर किए तो शेयर करने के बाद उनका बन गया एक पूरा नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो इस पूरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन में कहीं पे भी रह सकते हैं. अब मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन या तो दो एटम्स के बीच में रहेंगे या दो एटम्स से एक दूसरे से दूर रहेंगे. अगर वो दोनों के बीच में रहते हैं तो उसको हम नाम देते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. अगर वो दोनों के दूर रहते हैं तो उसको हम नाम देते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. सवाल ये उठता है, ऐसा कहा जाता है कि एंटी बॉन्डिंग की जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉन्डिंग. सो व्हाई इज द रीजन? एनीबॉडी? व्हाई इज इट सो दैट द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर? Yes. So stability. Can you please elaborate the answer? Your answer is right. So bonding की stability रहती है, bonding orbitals की stability ज्यादा रहती है anti bonding Say why. Say why. के comparatively. Say why. ऐसा क्यों होता है? This is very good answer. We follow a single rule of the universe. Higher is the energy, lower is the stability. Lower is the energy, higher is the stability. So your answer is very right. If I say that anti-bonding is having more energy, it will be less stable. If I am saying that bonding orbital is having less energy, it will be more stable. The question arises, why it is having less energy, why it is having more energy? क्योंकि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कंप्लीट एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है. Okay. और एंटी बॉन्डिंग में जो एक कंप्लीट ऑर्बिटल जो है फॉर्म नहीं हुआ, इसकी वजह से वो ज्यादा अनस्टेबल है. तो फिर ऐसा क्यों हुआ होगा? वो यहाँ पे कंप्लीट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों बना है और यहाँ पे ये ऑर्बिटल सर स्प्लिट क्यों? इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन. Very good, bang on. इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन. Yes, bang on. This is what we are expecting from you. The position of electron, as in the previous slide I have explained this concept, the position of electron is very important. If I say that this electrons lies between these two atoms, what they will do is that they will neutralize the effect. That means this positive charge, if I say that so if I say that this is the positive charge over here and these electrons are having negative charge, so when these electrons get apart from each other, दूर दूर चले जाते हैं, ऐसे केस में क्या होता है? like poles जो है वो नजदीक आते हैं, वो सॉरी like poles एक दूसरे से एक्सपोज हो जाते हैं. जब like poles एक्सपोज होंगे तो वो क्या होंगे? रिपेल होंगे. और जब वो रिपेल होते हैं तो उसको मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करते हैं, एनर्जी बढ़ जाती है. वही अगर मैं कहूं कि इन दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो ये इसको नलिफाई करता है और ये इसको नलिफाई करता है. Likewise here the stability is reduced, sorry, the stability is increased, the energy is reduced. So you need to understand that any kind of bond, either you take sigma bond, either you take pi bond, in any kind of bond there will be existing of two orbitals. One is bonding orbital, other one is anti-bonding orbitals. And the energy of bonding orbital will be always less than that of the anti-bonding. Got it? Yes? समझा concept? कुछ पूछना है किसी को? यहाँ पूछ लो क्योंकि आगे कंफ्यूज होगा नहीं तो. Okay for everybody?
चलो मैं कंसिडर करके चलता हूँ कि आपको समझ चुका है। तो यहाँ पे बहुत ही ब्रीफली बताया गया है कि कैसे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग एक दूसरे से अलग है। इन टर्म्स ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कैसे अलग है। फॉर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स विल बी बिटवीन द टू न्यूक्लियस, whereas for anti bonding electrons will be outside the nucleus. And energy wise अगर आप देखो तो energy of bonding orbital will be less as that of the anti bonding. अब आता है हमारा मेन कंपोनेंट, that is electronic transitions. So इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को समझने के पहले हमें ये मॉलिक्यूल को स्टडी करना है और आपको मुझे बताना है कि इस मॉलिक्यूल में कौन कौन से बॉन्ड्स अवेलेबल है या कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। चलो बॉन्ड्स की बात करेंगे, इस मॉलिक्यूल में कौन कौन से बॉन्ड्स अवेलेबल है। What are types of bonds? Sigma bond and pi bond. Sigma bond and pi bond. So in this molecule we do have sigma bond and pi bond. Okay, so we are having sigma bond, and since it is a unsaturation we will be having the pi bond also. अगर मैं कहता हूँ ये सिग्मा बॉन्ड है तो ये बॉन्ड ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स के ओवरलैपिंग से हुआ होगा ऑर्बिटल के, मतलब these electrons will be referred as the sigma bond electrons. अगर मैं कहता हूँ ये पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे भी लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ होंगे, ऑर्बिटल्स हुए होंगे, इनको हम नाम देंगे पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम देंगे इसको? पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो वी डू हैव सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड वी डू हैव पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज है जिसके बारे में चर्चा नहीं हुई, वो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में क्या खासियत है? इनके पास रहते हैं अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एक्स्ट्रा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स साथ में लेके चलते हैं, किसी के काम में आए तो देंगे, नहीं तो खुद लेके चलेंगे साथ में, बराबर। सो ये जो मतलब यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में तीन तरह के इलेक्ट्रॉन्स हमको देखने को मिल रहे हैं। एक है सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे है पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरे है वो इलेक्ट्रॉन्स जो किसी के साथ बॉन्ड फिलहाल तो उन्होंने बनाया नहीं है, जिनको हम नाम देते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इनको नाम देते हैं हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात की मैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं ये सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड भी होता है तो वहां पे भी दो ऑर्बिटल रहेंगे, एक रहेगा बॉन्डिंग, दूसरा रहेगा एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्ड के बॉन्डिंग ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार से। वैसे ही पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड में भी दो ऑर्बिटल रहेंगे, एक है पाई एंड सेकेंड वन इज पाई स्टार। वैसे ही एन नॉन बॉन्डिंग में आई वांटेड टू आस्क, क्या नॉन बॉन्डिंग में भी एन स्टार रहेगा? इफ यस से वाई, इफ नो से वाई। क्वेश्चन रिपीट करता हूं, जैसे सिग्मा में सिग्मा और सिग्मा स्टार दो ऑर्बिटल्स है, पाई बॉन्ड में पाई और पाई स्टार दो ऑर्बिटल्स है, क्या वैसे नॉन बॉन्डिंग में भी दो ऑर्बिटल्स रहेंगे, एन एंड एन स्टार? अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों? नहीं रहेंगे सर। से वाई? सर स्वतः नॉन बॉन्डिंग आहे तर ते बॉन्ड फॉर्म करणार नाही। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट लॉजिक वी कैन अंडरस्टैंड। वो बॉन्ड ही नहीं बना रहे तो एंटी बॉन्डिंग का सवाल ही नहीं उठता, वो अपने साथ लेके चल रहे हैं। सो वी विल नॉट बी हैविंग एन स्टार। ओके, सो डोंट गेट पैनिक इफ यू डोंट ऑब्जर्व एनीबॉडी एनीवेयर एन स्टार। ओके, ऐसा सवाल आ सकता है कि एन स्टार क्यों नहीं है, सिग्मा स्टार है, पाई स्टार है, एन स्टार क्यों मिसिंग है? सो दिस इज द लॉजिक व्हाई एन स्टार इज नॉट देयर। क्योंकि एंटी बॉन्डिंग कब आएगा? जब वो बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गए। बॉन्ड में इन्वॉल्व ही नहीं है तो सवाल ही नहीं होता। ठीक है। सो लाइकवाइज जैसे मैंने बताया आपको, सिग्मा और सिग्मा स्टार रहते हैं, सिग्मा और सिग्मा स्टार, पाई और पाई स्टार, एन टू पाई स्टार। सो यहां तक शायद आपके दिमाग में चीजें समझ गई है। ओके, अब बात करेंगे हम थोड़ी सी नए कंसेप्ट की, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशंस। अब ट्रांजिशंस क्या होते हैं वो बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी लेवल्स की। एनर्जी लेवल, अब आप मुझे बताओ कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है? सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है, पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है?
which bond is supposed to be stronger? Sigma. Sigma. सिग्मा बराबर है या सो अगर मैं एनर्जी लेवल देखूं तो हायर इज द स्ट्रेंथ, लोअर विल बी द एनर्जी, ऑब्वियसली, ठीक है ना। सो अगर मैं एनर्जी वाइज देखूं तो सिग्मा बॉन्ड में सबसे कम एनर्जी रहती है, तो वो सबसे बॉटम पे रहेगा। अगर मैं एनर्जी लेवल देखना चाहूँ किस किस की, सिग्मा की, पाई की और नॉन बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास थे, तो जो सबसे स्टेबल है उसके पास एनर्जी सबसे कम रहेगी, जो सबसे अनस्टेबल है उसके पास एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी। अगर मैं उस लॉजिक से जाता हूं तो एनर्जी डायग्राम में सिग्मा बॉन्ड सबसे नीचे रहेगा लेवल वाइज, ये उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है। पाई बॉन्ड में थोड़ी ज्यादा एनर्जी रहेगी, ये उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो सबसे ऊपर रहेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स खुले हैं, वो कभी भी बॉन्ड बना सकते हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्ड में इन्वॉल्व है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स तो खुले हैं ना, तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी क्योंकि ये सबसे अनस्टेबल रहेगा। अब बात करते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की। सो ये जो ऑर्बिटल्स है, इन ऑर्बिटल्स को हम नाम देते हैं ऑक्यूपाइड लेवल्स। क्या नाम देते हैं? ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है? जो वहां जहां पे पहले बैठे हुए हैं उन्होंने वो जगह ऑक्यूपाई करके रखी है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्यूपाइड। और क्योंकि वो मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल्स, इनको नाम देते हैं हम ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, कौन कौन से? सिग्मा, पाई एंड एन स्टार। फिर हमने कहा था सिग्मा के लिए 2 ऑर्बिटल रहते हैं, सिग्मा और सिग्मा स्टार, लेकिन सिग्मा स्टार की एनर्जी सिग्मा से ज्यादा रहेगी, तो वो ऑब्वियसली यहां ना होके हो जाएगा ऊपर के साइड में, बराबर है। वैसे अगर मैं पाई देखूं तो पाई के भी 2 ऑर्बिटल है, पाई एंड पाई स्टार। अब एंटी बॉन्डिंग एनर्जी अगर मैं चेक करूं तो एंटी बॉन्डिंग वाइज सिग्मा स्टार की एनर्जी ज्यादा है और पाई स्टार की कम है, इसलिए पाई स्टार को नीचे की तरफ रखा गया है और सिग्मा स्टार को ऊपर की तरफ। दैट इज व्हाट वी कॉल पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार। अब ये जो ऑर्बिट्स है, इस ऑर्बिट्स में फिलहाल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। दिस इज द लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट इज अ हाईएस्ट स्टेट। सो इनको हम नाम देते हैं अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स, अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आया क्या ध्यान में? सो किसी भी मॉलिक्यूल में हमें मिलते हैं 2 तरह के ऑर्बिटल्स, एक रहते हैं ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दूसरे रहते हैं अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब सवाल ये उठता है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और हायर लेवल में जाएंगे, तो ऑब्वियसली वो मूव होंगे फ्रॉम सिग्मा टू सिग्मा स्टार। मतलब सिग्मा से उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में था, अब वो दोनों के साइड एजेस में चला जाएगा, व्हाट वी कॉल्ड एज सिग्मा टू सिग्मा स्टार। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो सिग्मा टू पाई स्टार भी ट्रैवल करता है। जब वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रैवल करता है, इसको हम नाम लेते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। वही अगर वो सिग्मा से पाई स्टार तक ट्रांजिट करता है, उसको हम नाम देते हैं सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन। आपके सिलेबस में ये ट्रांजिशन है जहां पे आप सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार, इसके बारे में बात करते हैं। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार का मतलब क्या होता है यहाँ बताया गया है, सिग्मा टू पाई स्टार का मतलब क्या होता है ये बताया गया। अब बारी आती है पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के पास भी 2 ऑप्शन है, या तो वो सिग्मा तक जाएंगे या तो वो पाई तक जाएंगे। तो पाई वाला जब सिग्मा तक जाता है उसको हम नाम देते हैं पाई टू सिग्मा स्टार, और पाई वाला जब पाई तक जाता है, पाई स्टार तक, उसको हम नाम देते हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, अब बचता है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल दोनों जगह जा सकते हैं। अगर वो n से सिग्मा स्टार जाता है उसको नाम देंगे n2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अगर वो n से मूव करता है पाई स्टार तक, उसको नाम देंगे n2 पाई स्टार ट्रांजिशन। So likewise we do have sigma to sigma star, sigma to sigma star, sigma to pi star, pi to sigma star, pi to pi star, n to sigma star and n to pi star transitions। यहाँ पे जो आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलती है
कि जो चीजें पहले ऑक्यूपाइड लेवल्स में थी वो अब गई है अनऑक्यूपाइड लेवल। बराबर है, मतलब मूवमेंट हुआ ऑक्यूपाइड लेवल टू अनऑक्यूपाइड। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अगर कोई EMR यहाँ पे इस मॉलिक्यूल से टकराता है तो सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होगा आपके हिसाब से? अगर कोई EMR इस मॉलिक्यूल से टकराता है तो इन तीनों में से सबसे पहले कौन ट्रांजिट होगा? सबसे पहले कौन एनर्जी एब्सॉर्ब करके हायर ऑर्बिटल में चला जाएगा? N2 pi star. ओके, आई विल टॉक अबाउट N। ठीक है, आई विल टॉक अबाउट N। सबसे पहले किसी को असर पड़ेगा तो N को पड़ेगा, उसके बाद पाई को पड़ेगा, उसके बाद सिग्मा को पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है अगर ये उड़ के जाएगा तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल गो टू पाई एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल गो टू पाई सिग्मा स्टार? If you observe the energy difference over here, this energy difference, I will just get it off. Yeah. If you check out the energy difference between these two orbitals, N and sigma star, ये energy difference देखो. At the same time, you observe the energy difference between these two orbitals, N to sigma star. किसकी एनर्जी कम है? Obviously, N to sigma star की एनर्जी, N to pi star की एनर्जी कम है. So this is the maximum probability of transition. सबसे ज्यादा probability transition की रहती है from here to here. उसके बाद नंबर लगता है इसका। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे भी एनर्जी डिफरेंस बढ़ते जा रहा है। So as you move from sigma non-bonding to sigma, the energy level is getting increased. So the maximum possibility by which so the maximum possibility of transition will be from N to pi star. This is the maximum possibility. Now N will be recorded as the highest occupied molecular orbital. What will be named as? क्योंकि अगर ये occupied orbital है तो इसमें सबसे highest कौन सा है? Obviously N. So इसको N को हम नाम देते हैं highest occupied molecular orbital. और अगर मैं पाई स्टार देखूं तो इसे हम नाम देंगे लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये है ना अनऑक्यूपाइड, और ये कौन सा ऑक्यूपाइड है। सो आपको एक बात समझनी है कि यूवी में जो ट्रांजिशन होता है वो हमेशा होता है होमो टू ल्यूमो। क्या होता है? होमो टू ल्यूमो, फ्रॉम होमो टू ल्यूमो। Here the word homo stands for highest occupied molecular orbital. That means this, and LUMO stands for lowest unoccupied molecular orbital. मतलब this. So this is the transition. अब ये transition क्या हर molecule में N to pi star ही रहेगी? Yes. क्या हर molecule में ये transition N to pi star ही रहेगी? No, sir. Why? Why? Because in every molecule the energy level will be different. किसी में अगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं तो कहां से आएंगे n ऑर्बिटल्स? बराबर है। किसी में अगर pi bonds बहुत ज्यादा होंगे तो obviously that will play a role. So for every molecule the energy level is different. And since energy level are different, the highest occupied molecular orbital will be different and lowest unoccupied will be different. Thus, the transition pattern changes from molecule to molecule. I guess the concept is clear to you. Okay, so अब यहाँ पे दो तरह के ट्रांजिशन रहते हैं, एक है अलाउड ट्रांजिशन और दूसरे है फोरबिडन ट्रांजिशन। अलाउड ट्रांजिशन का मतलब क्या? अलाउड का मतलब होता है जब आप मोस्ट ऑब्वियस जगह पे पहुंचते हो। मतलब जैसे मैंने कहा कि मोस्ट ऑब्वियस कौन सा है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड टू लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। तो ये मोस्ट ऑब्वियस है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अलाउड ट्रांजिशन। लेकिन अगर वो ऐसी जगह पहुंचता है जहां हम एक्सपेक्ट नहीं कर, लाइकवाइज पाई टू सिग्मा स्टार, ये सिग्मा की एनर्जी काफी ज्यादा है,
पाई की एनर्जी एज सच बहुत कम है, तो पाई अपने से ज्यादा एनर्जी लेवल में जब जाता है तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज, ये मतलब इसे कहते हैं औकात से बाहर जा रहा है, इसको हम नाम देते हैं फोरबिडन ट्रांजिशन, ओके, विच इज हैविंग द मिनिमल प्रोबेबिलिटी और नो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग, लेकिन वो होता है। और ये फोरबिडन ट्रांजिशन आईआर में बहुत देखने को मिलते हैं। फोरबिडन ट्रांजिशन क्यों होते हैं? ये एक रिलैक्सेशन प्रोसेस है, एक्साइटेशन और रिलैक्सेशन, इसके द्वारा वो फोरबिडन ट्रांजिशन होते हैं। सो वी हैव टू गो इन मोर डिटेल अबाउट दैट, सो वी विल नॉट डिस्कस दैट थिंग। आपको सिर्फ चीजें यहाँ पे इतना समझना है कि ट्रांजिशन दो तरह की रहती है, एक रहती है अलाउड ट्रांजिशन और दूसरी रहती है फोरबिडन ट्रांजिशन। या सो here are few if you want you can take a screenshot of this chart where you can see कौन-कौन से मॉलिक्यूल्स में अलाउड ट्रांजिशन होती है, कौन-कौन से में फोरबिडन होती है। देखो मॉलिक्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे। जो एनर्जी डिफरेंस रहता है हर एक ट्रांजिशन के बीच में का, वो डिफर करता है फ्रॉम 125 टू 650, बराबर है। जो मैंने कहा था ना n टू पाई स्टार, वो n टू सिग्मा स्टार, जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है ये डिफर करता है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। सो सेशन को एंड करेंगे विथ एप्लीकेशन केस स्टडी। फॉर दैट हमने आज जो भी पढ़ा उसका एप्लीकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है एसीटोन। इस एसीटोन के केस में अगर आप इसको देखो तो इस एसीटोन ये मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है उसका, और ये उसका यूवी स्पेक्ट्रा है। यहाँ पे मुझे दो स्पेक्ट्रा मिल रहे हैं, दो कर्व्स मिल रहे हैं, एक है 270 पे, दूसरा मिल रहा है 190 पे, ओके 187 और 190। तो आपको मुझे बताना है कि इस केस में कौन सा वाला पीक कौन से ट्रांजिशन की वजह से है, अगर आप बता पाओ मुझे। यस, कौन सा वाला पीक कौन से ट्रांजिशन की वजह से होगा। पहले तो आपको मॉलिक्यूल स्टडी करना है, मॉलिक्यूल में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स है आपको वो देखना है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है क्या वो चेक करना है, एनर्जी लेवल्स देखने हैं और पॉसिबल ट्रांजिशंस वेरीफाई करने हैं। और फिर आपको बताना है मुझे कि जो 270 का पीक है वो किस ट्रांजिशन की वजह से हुआ होगा, और जो 187 का है वो किस ट्रांजिशन की वजह से। We are having very less time. If you could please answer very fast. Yes, students, I hope I am audible for everybody. 70 वाला जो राहील तो n टू पाय स्टार वाला राहील। n to pi star. Say why? तर लो एनर्जी आहे आणि वेवलेंथ जास्त राहील त्याची। Very good, very good, very good. Because non-bonding, this is the most probable transition, called allowed transition from HOMO to LUMO. बराबर? Highest occupied orbital कौन सा है इसमें? Non-bonding. Lowest unoccupied कौन सा है? Pi star. तो the most जो सबसे कम एनर्जी डिफरेंस है वो है n to pi star का, मतलब वहां पे एनर्जी कम लग रही है, तो 270 पे जो पीक मिलेगा वो आपको n to pi star की वजह से मिलेगा। इस पीक के बारे में बताओ। तर ते पाय टू पाय स्टार मुळे येणारी पीक राहील। Yes, most obvious. This will be because of the pi to pi star. So I guess आपको ये concept समझा है। So let's have in short the summary about what I discussed today. So first of all, we discussed the word spectroscopy. So what is spectroscopy? It's all about interaction of EMR with matter. In case of UV spectroscopy, the EMR will be replaced by UV rays. So UV spectroscopy is all about interaction of UV rays with matter. So what exactly happens when UV rays strikes matter? It brings about changes in all the energy levels of the molecule, that is rotational, vibrational, and electronic energy levels. These electronic transitions brings about, so we will be now discussing about the
we are less concerned about the rotational energy and vibrational energy. We are more concerned about the electronic transitions. The transitions usually occurs between the highest occupied molecular orbital to lowest unoccupied molecular orbitals. There are various transitions possible. Likewise, sigma to sigma star, sigma to pi star, pi to pi star, pi to sigma star, n to pi star, and n to sigma star. So likewise, transitions are possible from occupied to unoccupied levels. Then we have seen the difference between the energy levels. If I observe these two energy level, so this is the typical. So this difference may vary from molecule to molecule. So it is said that it goes from 125 to 650. The difference. Okay. Then what we discussed that obviously the transition occurs from HOMO to LUMO, that is highest to lowest. So that's all for today's session. There are a few more things in the topic in the chapter, but we can't continue that because of time stringency, and I also have some schedule. So I will stop my session over here.